So Himanshu, as you placed in PSU, would you like to tell something about your whole recruitment process of the PSU and say something about? It is a Navratna PSU, and it comes under the defense ministry, and it basically works on the Hi defense. everyone, this is Abhishek Kumar. Today I am going to talk Himanshu Maurya, who is placed in PSU Bharti Electronics. We will talk to him and we will learn many things. Himanshu Maurya, congratulations. Thanks, So, Abhishek. as you placed in PSU, would you like to tell something about your whole recruitment process of the PSU and say something about PSU? PSU is basically a public sector undertaking, and I am placed in the Bell PSU. It is a Navratna PSU, and it comes under the defense ministry, and it basically works on the defense latest defense equipments, and it's there are nine. The Bharat Electronics Limited is there are 9 units of Bell, and there are 2 CRL, which is Central Research Laboratory of Bell. One is in Bangalore, and the second one is in Ghaziabad, and I am placed in the Bell Ghaziabad, and if we talk about the recruitment process of how I placed, then it was an on-campus opportunity for me, and it comes on my college campus, and we have to only fill some form, apply form, and there are 2 interview round. Basically, there is one technical round, and a second is a managerial round, and the whole evaluation process of this, मतलब जो इसका evaluation था, तो उसमें कुछ इंटरव्यू का वेटेज था और कुछ उसका एकेडमिक का, तुम्हारा एकेडमिक में कैसा स्कोर रहा 10, 12 एंड बीटेक का जो एकेडमिक था परसेंटेज, उसका काफ़ी वेटेज था, और इंटरव्यू का भी था। जब वो PSU पे निर्भर करता है किस तरीके से उनका हाँ, डॉक्यूमेंट वर्क रहता है। वो टोटली PSU पे डिपेंड करता है क्या उनका मतलब वेटेज है। मैक्सिमम PSU, जैसे कुछ PSU और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एकेडमिक को भी देखती हैं, चेक करती हैं। ओके वुड यू लाइक टू गिव योर ओवरव्यू ऑफ इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू रहा था उस टाइम पे, क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्या वही क्वेश्चन पुटअप किए जो सिमिलर कंपनी में पुटअप किए जाते हैं, लाइक द इन्फोसिस, विप्रो, जो भी कंपनी अपने कॉलेज में आती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द PSU इंटरव्यू, तो PSU इंटरव्यू में क्या है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि PSU जो है गेट से हायर करती हैं उनको, मतलब PSU को गेट, जैसे बच्चे गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, और मतलब जो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा नीड होते हैं PSU को। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे ही था। कुछ मतलब इंटरव्यू में कुछ गेट्स के से रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कोर सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस के, लाइक DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क, DSA, ये इन्हीं सब के क्वेश्चन थे। कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लाइक इन द if you talk about some question, like there are some deadlock question, and in the DBMS there are some SQL question, and core DBMS question, normalization, etc. And in also DSA there are some asked some question about data structure, and these all about the core subject of computer science is very important. For one thing more, that in the PSU they don't focus on coding too much. They only asked some basic question on coding, and also they asked C language too, C and C++, and yeah, this. So okay, according to you, PSU is not focused on the totally on competitive programming or no. If you want to join PSU, then you don't require CP and all high DSA. DSA is required, but only basic DSA and theoretical knowledge of DSA. वेरी क्लियर होनी चाहिए जब जो भी सब्जेक्ट है उसके theoretical knowledge you can get. If you have covered all the syllabus of GATE, then you definitely crack the interview of PSU. अच्छा, जैसा कि मुझे पता है कि तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये PSU में इंटरव्यू जो हुआ है उसमें कितनी मतलब कहाँ तक हेल्प किया है, जो गेट के लिए जो प्रिपेयर किया है वो? I also add one more point that GATE preparation is very important for PSU as well as if you want to admission in MTech. So मैं भी गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा भी तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई। उसमें मतलब गेट की प्रिपरेशन करने से सब्जेक्ट्स कुछ काफ़ी क्लियर हुए,
कुछ इंपॉर्टेंट जैसे DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो या जो बच्चा मतलब जो कैंडिडेट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके वो PSU एंड आल्सो गेट प्रिपरेशन इज नॉट ओनली फॉर PSU, it is also helps in your campus placement in some another company like in the service based company, in IT company, and in a product based company, as because in the product based company also they ask the same question about DAS, DBMS or OS and CN। आने वाले जनरेशन जो इंजीनियरिंग की जनरेशन उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, जो बंदे PSU के लिए दौड़ रहे हैं या फिर जो बंदे कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहते हैं, ITCS की खासकर मैं बात करना चाहूँगा, ITCS और अदर ब्रांच के भी, तो आपके अनुसार क्या चीज़ें हैं और वो PSU या फिर जो कंपनी आती हैं प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड, उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा सही रहेगी? हाँ, तो अगर मैं मतलब मैं CSIT के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ तो CSIT है तो उसके पास दो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस तो PSUs बहुत ही कम विजिट करती हैं कॉलेज में, माइट दे आर विजिटिंग इन सम मतलब टॉप IITs एंड टॉप NITs एंड आल्सो सो अगर उसको मतलब PSU में प्लेसमेंट लेना है तो उसको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और फिर गेट अच्छी रैंक से डिसेंट रैंक उसमें लानी चाहिए। उसके बाद देन ही विल अप्लाई एंड देन तो अब उसका हो सकता है फिर इंटरव्यू क्रैक करके फिर हो जाता है। और लेकिन इसमें थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है कि CS के लिए PSUs में बहुत कम सीटें आती। कुछ PSUs हैं जैसे ये बेल हो गई और ONGC, IOCL एंड बार्क, ISRO एंड बार्क सम PSU आल्सो कंडक्टिंग देयर सेपरेट एग्जाम। तो PSUs कुछ सीटें कम होती हैं तो इसमें थोड़ा कंपटीशन हाई हो जाता है, तो हमें गेट में की रैंक और अच्छी लानी होती है। तो ज़्यादा इजी उन बंदों के लिए होगा जो हाँ, गेट की प्रेम तो ये PSU के लिए एमटेक के थोड़ा मतलब ज़्यादा चांस है कि आप PSU में पा सकते हैं। नहीं बीटेक का श्योर नहीं रहता मुझे लगता है। हाँ, बीटेक के बाद भी अगर तुम IITs में हो तो ऑन कैंपस आती है, तो ऑन कैंपस जब आती है तो बीटेक एमटेक दोनों को अलाउ करती हैं। लेकिन अगर तुम अच्छे कॉलेज से हो तो नहीं तो थर्ड कॉलेज के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। टायर 3 में भी कभी कभी आ जाती है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में चांसेस हैं, लेकिन तो बाकी कॉलेज में तो चांसेस नहीं होते। तो और अगर PSU जैसे और अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट लेना है तो उसके लिए तो काफ़ी मतलब अच्छी कोडिंग और DSA अच्छा, मतलब DSA तो बहुत ही मतलब बेसिक प्राइमरी है, वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है DSA। और उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ किसी भी टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट पे और अनदर थिंग लाइक इन मशीन लर्निंग डोमेन एंड डेटा साइंस और मतलब डेवलपमेंट एंड मतलब एंड्रॉयड में या फिर वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। लेकिन DSA अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। अच्छा हिमांशु, तो ये बातें हो गई हमारे प्लेसमेंट रिलेटेड और कॉलेज में जब तक हम रहते तब तक की बातें। तो अभी आप जा रहे हैं PSU में, तो PSU किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर से डिफरेंट है, तो इसके बारे में कुछ ओवरव्यू दीजिए ताकि जो स्टूडेंट है जो आने वाली जनरेशन को पता चले कि हमारे लिए PSU ठीक ठाक रहेगा जो या फिर ITCS की जो भी कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा सही रहेगी। आपके अनुसार क्या चीज़ें अच्छी हैं? CSIT स्टूडेंट के लिए तो मतलब ये टोटली डिपेंड करता है। जैसे PSUs में कि मैं कुछ बताता हूँ क्या उसमें कुछ एडवांटेजेस PSUs में, जैसे इफ़ समवन वांट्स स्टेबिलिटी एंड आल्सो decent package and stability and then he might choose PSU and also some demerits of PSU like you have to learning opportunities are limited and some limited and might some administrative work and some politics happen in the office and but if we talk about the product based company, there is a more challenging work and high growth opportunity, exponential growth opportunity, and also they also paid as more package. they are high paying job, they provide high paying job, some product based company and also some product based startup and fintech company। तो and हर जगह की अपनी अपना तो सबका हाँ अलग है। and if also if you somehow if you get a service based company then don't worry, if you join service based company then don't stop the learning, don't come in the comfort zone because ओके हिमांशु, तो अब आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस है? फाइनल एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, आपको प्रोडक्टिव बनाए फाइनल में? तो जैसे मतलब जैसे पहले सबसे पहले तो गोल सेट हो जाना चाहिए कि जैसे आप कॉलेज में आए तो पहले और सबसे पहले कॉलेज में आए तो कॉलेज के बारे में जानो, जैसे कॉलेज की क्या मतलब कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट, सबसे जो के बारे में जानो कैसा प्लेसमेंट है कॉलेज में। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुझे भी सही से पता नहीं था क्योंकि सीनियर से उतना इंटरेक्शन नहीं था,
तो सीनियर से था भी, तो हम लोग इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते थे प्लेसमेंट्स के बारे में। फिर बाद में आगे पता लगा थर्ड ईयर में कि प्लेसमेंट्स काफ़ी सही हैं, तो फिर कभी गड़बड़ हो जाता है कि बच्चा गेट में प्लेसमेंट दोनों में हो जाता है। और फिर तो सीनियर और एलुमनाई से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और ताकि तुम्हें पता चलता रहे और या फिर किस कंपनी में है सीनियर्स और किस कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह पता चलता रहे। और जितनी जल्दी तुम स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, एंड इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आल्सो यू हैव टू एंजॉय टू। तो बहुत सारी बातें मैंने हिमांशु वगैरह से की। और हाँ सर, अब पूछना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही सब। हाँ, तो बहुत सारी बस ये लास्ट में है कि मतलब सिर्फ कोडिंग ही नहीं, मतलब एंजॉय भी करो, मतलब फॉरेन काउंसिल भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं खुद था, मैं स्पोर्ट्स में फुटबॉल में था और मैं PFSC में था, तो कर सकते हो उसमें। वैसे ज़्यादा कोई इंटरव्यू में बेनिफिट तो नहीं देता, लेकिन तुम्हारा इससे क्या है कि इंटरेक्शन हो जाता है जूनियर्स एज वेल एज फ्रॉम विद सीनियर, तो ये थोड़ा हो सकता है, थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए। तो हम लोगों ने ढेर सारी बातें हिमांशु से की, और हम लोगों ने जाना PSC के बारे में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और जो भी उनका कैसा भी इंटरव्यू रहा है, जो भी मेन चीज़ थी उन्होंने गेट की प्रिपरेशन की, कैसे क्या किया। तो इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा, और ये मेरे सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, इंटरव्यू वीडियो, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।